امن کے دشمنوں کا ایک بار پھر بزدلانہ وار فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے کوئٹہ سے لاہور جانے والی مسافر بسوں سے 9 مسافروں کو اغوا کر کے شہید کر دیا۔ کوئٹہ، قلات، مستونگ اور سر ڈھاکہ میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے حملے کیے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کے مطابق لورا لائی کے قریب بعض مسافروں کے اغوا کی اطلاع موصول ہوئی۔ دہشت گردوں نے بسوں سے مسافروں کو اتار کر شناخت کے بعد شہید کر دیا۔ بے گناہ شہریوں کو بہیمانہ طریقے سے قتل کرنا فتنہ ہندوستان کی کھلی درندگی ہے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا تھا دہشت گرد تاریکی میں فرار ہوئے، ان کا تعاقب جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا متاثرہ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر جوب نوید عالم کے مطابق شہید مسافروں کی میتوں کو رکھنی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ شہید ہونے والے مسافروں کا تعلق پنجاب کے مختلف شہروں سے تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی سر ڈھاکہ میں نہتے مسافروں کے قتل کی شدید مذمت۔ سرفراز بگٹی نے ایک بیان میں کہا کہ نہتے پاکستانیوں کا قتل فتنہ ہندوستان کی کھلی دہشت گردی ہے۔ پاکستانی شناخت پر معصوموں کا قتل عام ناقابل معافی جرم ہے، جواب سخت ہوگا۔ دہشت گردوں نے بزدل درندے ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ بلوچستان کی مٹی میں بے گناہوں کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ ریاست ان قاتلوں کو زمین کے اندر بھی چھپنے نہیں دے گی۔ دہشت گردی کے ہر منصوبے کو طاقت، عزم اور اتحاد سے کچلیں گے۔ بلوچستان دشمنوں کے لیے قبرستان بنے گا۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے تمام نیٹ ورکس تباہ کریں گے۔ یہ ریاستی جنگ ہے، اس میں دو ٹوک فیصلہ ہوگا۔ پاکستانی عوام کے زخموں کا بدلہ لیں گے، دہشت گردی کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ مسافروں کے بہیمانہ قتل کے بعد بلوچستان اور پنجاب کے سرحدی علاقوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان پنجاب کے سرحدی علاقوں کوہ سلیمان میں بارڈر، ملٹری، پولیس اور بلوچ لیوی فورس سمیت دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہائی الرٹ کر دیے گئے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن اشفاق احمد چودھری، سینئر کمانڈنٹ ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد کا کمانڈنٹ محمد اسد خان چانڈیو کو بارڈر ایریا میں سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کرنے کا حکم۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان اشفاق احمد چودھری، ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد کے حکم پر بواٹا میں بلوچستان جانے والے مسافروں اور گاڑیوں کو روک لیا گیا۔ بارڈر، ملٹری، پولیس کی بھاری نفری بلوچستان پنجاب بارڈر، بواٹا، کھر، فورٹ منرو سمیت دیگر علاقوں میں ہائی الرٹ پر ہے۔ سیکیورٹی اہلکار موبائل میں اور پیدل گشت کر رہے ہیں۔ بھارت کی تیسری طاقت کو شامل کرنے کی کوشش بلاک سیاست کا ہتھ کنڈا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں بھارتی توسیع پسندانہ عزائم، ہندوتوا، انتہا پسندی اور پراکسیز کے حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بھارت کی پراکسی کارروائیوں کے خلاف فیصلہ کن اور جامع اقدامات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ پاکستانی عوام کی سلامتی اور تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے۔ شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال اور علاقائی جغرافیائی پیش رفتوں پر تفصیلی غور اور دہشت گردی کے خلاف حالیہ کامیابیوں کا جائزہ لیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے اپنے خطاب میں بھارت کی تیسری طاقت کے طور پر عالمی سیاست میں شمولیت کی کوشش کو بلاک پالیٹکس کا ایک ناپاک ہتھ کنڈا قرار دیا۔ آرمی چیف نے کہا، دنیا بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور ہندوتوا انتہا پسندی سے بدزن ہوتی جا رہی ہے۔ فورم نے مشرق وسطیٰ اور ایران میں طاقت کے بڑھتے ہوئے استعمال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کو خود انحصاری، قومی اتحاد اور عزم کو مزید مستحکم کرنا ہوگا۔ کانفرنس میں فورم کو فیلڈ مارشل کے امریکہ، ایران، ترکیہ، آذربائیجان، سعودی عرب اور UAE کے کامیاب دوروں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے بتایا کہ دورہ امریکہ کے دوران اعلیٰ امریکی قیادت کو پاکستان کا موقف براہ راست پیش کیا گیا۔ کانفرنس میں بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز کے حملوں میں شہید ہونے والے افسران اور جوانوں کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ فیلڈ مارشل نے پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے ساتھ ٹرائی سروسز ہم آہنگی کو سراہا اور ملک کو درپیش تمام خطرات کے خلاف پاک فوج کی تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کے اہل خانہ نے لاش وصول کر لی ہے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے روڈ لاہور روانہ کر دی گئی ہے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی تدفین لاہور میں ہوگی۔ پوسٹ مارٹم دیگر شواہد کے بعد ہی واقعے کا مقدمہ درج کروائیں گے۔ 1 سے 1.5 سال سے ہمارا حمیرہ سے رابطہ ختم ہو گیا۔ حمیرہ اصغر اپنی مرضی کی خود مالک تھیں۔ یہ غلط تاثر دیا گیا ہے کہ والدین کا قطع تعلق تھا۔ رمضان چھیپا نے کہا ہے کہ نوید اصغر مستقل رابطے میں تھے۔ سوشل میڈیا پر غلط پروپیگنڈا کیا گیا کہ حمیرہ کے والدین اور بہن بھائی ناراض ہیں، سب کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں۔ سوشل میڈیا کے اس پروپیگنڈے کو
को ख़त्म होना चाहिए और नाराज़गी हर घर में होती है। ये एक फैमिली का मामला है, इसे ज़्यादा डिस्कस ना किया जाए। हमें हुमैरा की बेटी की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुमैरा असगर की लाश 9 माह से ज़ायद पुरानी निकली। हुमैरा 2018 से कराची के डिफेंस फेज 6 में अकेली रह रही थी। अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की मौत मुआमा बन गई है। पोस्टमार्टम मुकम्मल, लाश 9 माह से ज़ायद पुरानी निकली। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लाश इंतहाई मस्ख शुदा हालत में थी। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अक्टूबर 2024 में बंद हो गया था। फ्लैट में मौजूद खाने और बिल भी अक्टूबर के ही हैं। मॉडल वनीज़ा अहमद का कहना है कि मुझे हुमैरा असगर के साथ काम करने का तजुर्बा रहा है। वो एक बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की थी। BBC उर्दू से बात करते हुए कहा कि शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत से लोग किसी न किसी गर्ज से ही राबिता करते हैं, लेकिन हुमैरा का केस मुख्तलिफ था। मॉडल नाजिया हुसैन कहती हैं कि चैनल्स में काम करने वालों को रेगुलर इनकम मिलती है। अदाकार नबील ने बतौर सीनियर शोबिज़ कम्युनिटी को एक दूसरे का हाल अहवाल लेते रहने की ताकीद की है। अदाकारा और मॉडल जिया अली ने कहा कि मैं नहीं जानती कि शोबिज़ फनकार काम ना मिलने की वजह से जहनी दबाव में आ जाते हैं। सीनियर फनकार खालिद अनम ने कहा है कि यह वाकई एक अफसोसनाक और दर्दनाक सानिहा है। ज़ाले सरहदी ने कहा कि हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हुमैरा के आखिरी दिनों में इन पर क्या गुजरी। अदाकारा और गुलकार मोहसिन अब्बास कहते हैं कि आयशा आपा के बाद से अब हुमैरा की खबर ने दिल दहला दिए हैं। कराची में जून के दौरान कितनी वारदातें हुई, रिपोर्ट सामने आ गई। CPLC ने जून के महीने में वारदातों के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में माह जून के दौरान शहरियों को 138 कारों से महरूम किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में शहरियों को 3883 मोटरसाइकिलों से हाथ धोना पड़ा। लुटेरों ने शहरियों से 1436 मोबाइल और 33 अफराद का कत्ल किया। CPLC के मुताबिक शहर में जून में भत्ताखोरी के 7 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में अगवा बराए तावान के 2 केसेस रिपोर्ट हुए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडे के पीछे कौन है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि ना सदर मुमलिकत ने इस्तीफ़े की बात की है, ना ही आर्मी चीफ का कोई सियासी ओहदा संभालने का इरादा है। आर्मी चीफ की तमाम तर और मुकम्मल तवज्जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और दिफा पर मरकूज़ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और अस्करी क़यादत के दरमियान मुकम्मल एतमाद और बाहमी एहतराम का रिश्ता कायम है। मैं जानता हूँ कि ये झूठ कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है और किसके कहने पर फैला रहा है। प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद को कहना चाहता हूं कि जो करना चाहते हैं कर लें। हमने जो करना जरूरी समझा वो हम करेंगे। पाकिस्तान को इंशाअल्लाह दोबारा मजबूत बनाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि सदर पाकिस्तान की तब्दीली से मुतालिक गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था। वो चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि पहले चीनी बरामद करते हैं फिर दरामद करते हैं, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि इस वक्त हम हुकूमत का हिस्सा नहीं और ना ही मैं इसका तर्जमान हूँ। टडाब केस से मुतालिक यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। 12 बरस से मुकदमात चल रहे थे जो पहले तालिबा थीं, आज बतौर प्रोसिक्यूटर पेश हुईं। बानी पिटाई 2 साल से कैद हैं, इनके बच्चों को भी इनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं। जमामा गोल्ड स्मिथ का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल कहती हैं कि बानी पिटाई के बच्चों को अपने वालिद से बात करने की भी इजाज़त नहीं और अब हुकूमत धमकी दे रही है कि अगर बच्चे वालिद से मिलने गए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी के बेटों का PTI में शामिल होना इनका हक है और इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर वो गिरफ्तार होंगे तो सियासी तौर पर मज़ीद उभरेंगे। उन्होंने कहा कि कासिम और सुलेमान की बानी से मुलाकात में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि स्पीकर का नाअहली की तरफ जाना आइनी हुदूद से तजावुज़ है और एहतजाज पर नाअहली की कोई आइनी गुंजाइश नहीं। मुअत्तली तक मामला दुरुस्त था मगर रुकनीत ख़त्म करना कानून के ख़िलाफ़ है। PTI तसादुम के बजाय सियासी तदब्बुर का काम करे। बानी पिटाई को इनके बच्चे और इनकी बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। बानी की रिहाई खुद इन पर मुनहसर है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि बानी पिटाई अपने बच्चों को सियासत में लाना चाहते हैं। इनके बच्चे ज़रूर पाकिस्तान आएँ, तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं। बानी के बच्चे कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज़ नहीं। इनके बच्चों के आने से कोई तूफ़ान नहीं आएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दीली नहीं हो रही है।
पंजाब में रिकॉर्ड मॉनसून बारिशें। लाहौर में हालिया सीजन की सबसे ज्यादा 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पीटीएमए के मुताबिक रवां साल मॉनसून बारिशों के दौरान अब तक 36 अफराद जाँ बहक और 96 जख्मी हुए हैं, जबकि 42 मकानात को नुकसान पहुंचा और 4 मवेशी भी हलाक हुए हैं। डीजी पीटीएमए का कहना है कि मानसून का मौजूदा सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर डिवीजन्स में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। वज़ीर आला पंजाब का मूसलाधार बारिश में काम करने वाले वासा एहलकारों को शाबाश। मरियम नवाज ने कहा कि गैर मामूली सूरत हाल में टीम्स की फौरी कार्रवाई काबिल तहसीन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि शदीद बारिश के बावजूद लाहौर की सड़कें, अंडरपासेस और अहम रास्ते मुकम्मल तौर पर क्लियर हैं। वासा की टीम्स ने बगैर ताख़ीर फील्ड संभाली, निकासी बर वक्त की और रफ्तार इसकी बेहतरीन थी और आवाम को रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। तमाम तर मामलात बेहतरीन तरीके से चलाए जाते रहे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर होकर रह गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में तेज बारिशों के बायस निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गलियां, बाजार और सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रही। फैसलाबाद, गुजरात, ननकाना साहब, कमालिया, पाकपतन, डस्का, कसूर, शेखुपुरा, रायविंड, दादलियावाला, संबड़ियाल, जड़ावाला, पतोकी और भवाना समेत कई शहरों में निकासियाब का निज़ाम नाकाम हो गया। पानी घरों, दुकानों, मसाजिद और दफातर में दाखिल हो गया। गुजरांवाला, संबड़ियाल, शरकपुर शरीफ और वजीराबाद में बारिश के बाद मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। बिजली मुअत्तल हो गए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। बलोचिस्तान के इलाकों खुजदार, नसीराबाद से भी बख्तियाराबाद और बारखान में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि सिंध के दादू और लाड़काना में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। गलियात, आज़ाद कश्मीर, हजीरा और ततापानी में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर करते हुए सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत की है। नदी नालों में तुग़यानी के बायस अलर्ट जारी कर दिया गया। मुल्क भर में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके नतीजे में सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग जैसे खतरात लाहिक हो सकते हैं। महकमा के मुताबिक 11 से 17 जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अजला दीर, चतराल, मालाकंड, सवात, बुनहेर, कोहाट, करक, डेरा इस्माइल खान, बाजौर, महमद, वजीरिस्तान, हंगू, मर्दान, सवाबी, मानसेरा और एबटाबाद में बारिशों का इम्कान है, जबकि बाज़ मकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। 14 से 17 जुलाई के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बारिश के नतीजे में नदी नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खदशा है। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा, नौशेरा और पेशावर जैसे बड़े शहरों के नशेबी इलाके मुतासिर हो सकते हैं। बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खतरे के पेश नज़र मुतलका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई हैं। आवाम, मुसाफिरों और सयाह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। अभी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पीटीआई के साबिक और मौजूदा रहनुमाओं के दरमियान जुबानी जंग अदालती महाज तक पहुंच गई है। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने फवाद चौधरी के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर झूठे और तौहीन आमेज़ बयानात देकर इनकी साख को नुकसान पहुंचाया। दावे में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार एक इज़्ज़तदार शहरी और कौमी असम्बली का मुंतखब नुमाइंदा है। एडिशनल सेशन जज सुहेल शेख ने केस की समाअत की और फरीक़ैन से आइंदा समाअत पर इब्तदाई दलाइल तलब करते हुए केस की समाअत 12 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। सेशन कोर्ट लाहौर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हत्या के इज़्ज़त के दावे में बड़ी पेशरफ्त। शहबाज शरीफ की लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मज़ीद सानवी शहादत करवाने की इजाज़त दे दी। एडिशनल सेशन जज ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई के वकील ने दरख्वास्त की मुखालिफत की थी। शहबाज शरीफ ने मज़ीद सानवी शहादत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। टडाप मेगा करप्शन केस में यूसुफ रजा गिलानी 9 मुकदमात से बरी। कराची की विफाकी एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन सेनेट दीगर शरीक मुल्जिमान के साथ अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान के खिलाफ बोगस कंपनीज बनाकर फ्रेट सब्सिडी की मद में 7 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम था। एफआईए ने टडाप केस में मजमूई तौर पर 26 मुकदमात दर्ज किए थे। यूसुफ रजा गिलानी इनमें से पहले ही 3 मुकदमात से बरी हो चुके थे। आज के फैसले के बाद वो कुल 12 मुकदमात से बरी हो चुके हैं। टडाप करप्शन केस की
तहकीकात का आगाज़ 2009 में हुआ था। यूसुफ रज़ा गिलानी को 2015 में इन मुकदमात के हतमी चालान में बतौर मुल्ज़िम नामज़द किया गया था। हैदराबाद में पुलिस की मोबाइल टिकटॉकर लड़कियों के ज़रिए इस्तेमाल होने लगी। खातून की पुलिस मोबाइल के साथ पुलिस कैप लगाने और गीत गाने और रक्स करते हुए टिकटॉक वायरल हो गई। मज़ीद जानते हैं अब्बास अली वाहिद से। जी अब्बास अली वाहिद, आगाह कीजिएगा, उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करें। आपको बताएं कि लड़की के मोबाइल के साथ मोबाइल में कैप भी इस्तेमाल की गई है। हैदराबाद में पुलिस ने अपनी गाड़ियां टिकटॉक लड़कियों के हवाले कर दी हैं। लड़की के मोबाइल के साथ पुलिस कैप लगाकर गाना गाने की वीडियो वायरल हो गई है। हैदराबाद पुलिस ने अपनी गाड़ियां टिकटॉक लड़कियों के हवाले कर दी हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके तहसील थोड़ाड़ में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अजीज़ाबाद में बच्ची के क्लासरूम में बंद करके ताले लगा दिए गए, जबकि स्कूल इंतज़ामिया के मुबैना गफलत के बायस एक कमसिन तालिबा को क्लासरूम में बंद करके स्कूल को ताले लगा दिए गए। बच्ची कई घंटे तक स्कूल में बंद रही। वाक़े का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब बच्ची घर ना पहुंची तो वालिद स्कूल पहुंचे। स्कूल खोलने पर बच्ची सहमी हालत में बरामद हुई। अहले इलाका और वालिदैन ने सख्त एहतजाज करते हुए स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास में सूबे में निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए अहम फैसले किए गए हैं। इस दौरान पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 3 अहम मनसूबों के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर्स की उसूली मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने इस मौके पर कहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मनसूबों पर मुकर्ररा टाइम लाइन्स के मुताबिक पेशरफ्त यकीनी बनाई जाए। सरमायाकारों की भरपूर हौसला अफजाई और इन्हें एतमाद देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मौजूदा निज़ाम में इस्लाहात की जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि घनौल इंटीग्रेटेड टूरिज्म जोन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के डिज़ाइन, बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफ़र मॉडल के तहत कायम किया जाएगा। टूरिज्म जोन में सियाहती सहूलियात के साथ साथ दीगर दरकार तमाम लवाजमात फराहम किए जाएंगे। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं ने फाटा की पुरानी हैसियत को बहाल करने की मुखालिफत कर दी है। कहा कि वफाकी हुकूमत मावराए आईने इक़दाम से गुरेज करे, जबकि अमीर जमात इस्लामी वस्ती खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल वासी ने कहा है कि सूबा और ज़मनशुदा अजला इस वक्त शदीद बदअमनी की लपेट में हैं। साबिक सूबाई वज़ीर और अमीर जमात इस्लामी शुमाली पख्तूनख्वा इनायतुल्लाह का कहना है कि आवाम के मफाद के मुताबिक फ़ैसले किए जाएँ। 73 के आइन के ख़िलाफ़ है, ये 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ है और इस की वजह से हम समझते हैं कि ये वफाकी हुकूमत ने सूबे के मामलात में मुदाखलत की है। कबायली अज़ला के अंदर अगर मसाइल मौजूद है, वफाकी हुकूमत ने मर्जर के वक्त जो वादे किए थे अपने वादों को पूरा करें तो इंशाअल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और अगर मसाइल हैं तो सूबाई हुकूमत उसको एड्रेस करे, सूबाई हुकूमत नाअहली का मुजाहिरा न करे। वफाकी हुकूमत को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो कानून जो FCR का काला कानून था उसको ख़त्म करने के लिए अगर अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं तो उनके कुर्बानियों की नाक़दरी नहीं करनी चाहिए और वफाकी हुकूमत की कमेटी को हम मुस्तरद करते हैं। एडिशनल IG साउथ पंजाब का कहना है कि कच्चे के डाकों के खिलाफ ड्रोन से कार्रवाई होगी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह 1 माह में होगा। फुरकान खान ने अमेरिका में रेसलिंग गेम जीतकर मेडल हासिल करके मुल्क और कौम का नाम रोशन कर दिया। एडिशनल IG साउथ पंजाब कामरान खान ने कहा है कि कच्चे के डाकों के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन ऑपरेशन किए जाएंगे, जिसकी हुकूमती मंजूरी हासिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कच्चे के इलाकों में आम शहरियों की मौजूदगी के पेश नज़र कार्रवाइयाँ इंतहाई एहतियात से की जाएंगी। उनका कहना था कि मखसूस जराइम की रोकथाम के लिए CCD को टारगेट दिए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर क्राइम कंट्रोल पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी है। एडिशनल IG ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फुरकान को अमेरिका में आलमी रेसलिंग मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी और कहा कि आइंदा भी पंजाब पुलिस के एहलकार इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेंगे। साउथ पंजाब के कुछ अजला में सेफ सिटी मनसूबा फाल हो चुका है, जबकि मुल्तान में 1 माह में बाकायदा इफ्तिताह होगा। बजट मसाइल के बावजूद मनसूबे की तकमील की कोशिशें जारी हैं। चेयरमैन वापडा नवीद असगर चौधरी ने महमद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ साइट्स पर जारी तरक्याती सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान चेयरमैन ने अहम मकामात का मुआयना किया और प्रोजेक्ट के अहदाफ के हुसूल में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। महमद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर तामीराती काम तेजी से जारी। चेयरमैन वापडा ने मुख्तलिफ साइट्स का मुआयना किया। प्रोजेक्ट इंतजामिया ने चेयरमैन वापडा को महमद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर जारी पेशरफ्त से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया गया कि
منصوبے کی 14 مختلف سائٹس پر بیک وقت تعمیراتی کام بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ بریفنگ کے دوران چیئرمین کو آگاہ کیا گیا کہ پاور ہاؤس کی عمارت کو اور اس کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے، جبکہ الیکٹرو میکینیکل آلات کی تیاری آئندہ مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ مین ڈیم کی تکمیل کے بعد منصوبے سے بجلی کی پیداوار 2027 میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ اس موقع پر چیئرمین وابڈا نے زور دیا کہ محمد ڈیم پروجیکٹ ملک کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ زرعی ضروریات کی تکمیل، سیلاب سے بچاؤ اور سستی بجلی کی فراہمی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ ایئرسیل کی پرواز کے ذریعے کراچی جانے والے مسافر کو جدہ لے جانے کا معاملہ۔ ایئرسیل کی سنگین غفلت سے لاہور سے کراچی جانے والا مسافر بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے جدہ پہنچ گیا تھا۔ واقعے پر پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے سخت نوٹس لیتے ہوئے سول ایویشن اتھارٹی اور ایئر لائنز کے اسٹیشن مینیجر کو وضاحتی طلبی کے خطوط ارسال کر دیے۔ ذرائع کے مطابق شہری ہوابازی کے ریگولیٹر سے ایئر لائن پر بھاری جرمانہ عائد کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ متاثرہ مسافر نے بتایا کہ جدہ ایئرپورٹ پر سعودی امیگریشن حکام نے اسے حراست میں لے کر تفتیش کی۔ بازان وضاحت کے بعد اسے ڈیپورٹ کر کے واپس لاہور بھیج دیا گیا۔ مسافر کا کہنا ہے کہ میری کوئی غلطی نہیں، ایئر لائن مجھے کراچی پہنچائے، یہ ان کی غفلت ہے۔ ایئر لائن انتظامیہ کے مطابق یہ غلطی طیارہ تبدیلی کے دوران غلط فہمی کی وجہ سے پیش آئی، جبکہ لاہور ایئرپورٹ پر جاری تعمیراتی کام بھی ممکنہ طور پر اس غلطی کا سبب بنا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے تسلیم کیا کہ 2023-24 میں بجلی چوری، ناقص ریکوری، نااہلی کے باعث 591 ارب روپے ڈوب گئے۔ نقصانات کم کر کے اب صرف 399 ارب روپے رہ گئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بلوں کی ریکوری کو 96% تک لے گئے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اس پیکج میں۔ بجلی چوری، نااہلی یا ناقص کارکردگی، بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے ہاتھوں قوم کو 591 ارب کا ٹیکہ۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے تسلیم کیا 2023-24 میں بجلی چوری، ناقص ریکوری، نااہلی کے باعث 591 ارب روپے ڈوب گئے۔ نقصانات کم ہو کر اب صرف 399 ارب رہ گئے ہیں۔ تقریباً 10 کمپنیاں ہیں، انہوں نے 2023-24 کے اندر کل نقصانات کی مد 591 ارب روپے کے نقصانات کے ذریعے ایک بوجھ ڈالا۔ اویس لغاری کا کہنا تھا صنعتوں میں بجلی چوری ہوتی ہے، گجرانوالہ میں 60 ارب کی بجلی چوری روکی گئی۔ اس سال ہمارا مکمل فوکس ریکوری کے علاوہ بجلی چوری پر قابو پانا ہے۔ اس سال ہمارا ٹوٹل فوکس ریکوریز کے علاوہ بجلی چوری کے اس جو نظام ہے اس کو جا کے ڈسمینٹل کرنا ہوگا۔ اویس لغاری نے کہا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بلوں کی ریکوری کو 96% تک لے گئے۔ گڈ گورننس کی بدولت پاور ڈسٹریبیوشن نقصانات کو کم کرنے میں کامیاب ہوئے، نقصان کم کر کے 399 ارب تک لے آئے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس ریکوری کی فگر کو امپروو کر کے 92.4 سے 96.6% پہ ہم لے کے گئے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے تسلیم کیا کہ اگر نقصان نہ ہوتا تو قرضوں کا بوجھ کم کیا جا سکتا تھا۔